morning students. Today I am going to begin new chapter number 14, chemical effects of electric current. Okay, so in this chapter we are going to learn about conductors and insulators, electric tester, checking of electric tester, modifications of electric tester, electrical conductivity. Then we will discuss about electrolytes, ions, non-electrolytes. Then we will discuss about electrolysis. This is actually process. Electrodes, they are helpful for the conductivity of electric current, effects of electric current, and lots of things. So students, first of all we will start with what is electricity. Electricity is a flow of electron, and we use many devices like geysers, refrigerator, washing machine, fan, electric bulb, television, computer. So this whatever the electrical devices we are using, it need electricity to function. We cannot imagine our life without electricity. Actually, electricity provides us a form of energy called electrical energy. It is one of the most efficient, pollution free and useful forms of energy. So what is electrical energy? What is electricity? Electricity is a form of energy which is giving us electrical energy. Okay, so this electricity, or you can say electric current, flows when there is a source of current. There should be source of current, then there is possibility of electricity. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सोर्स होना चाहिए. एज आई टॉट यू, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. सो ये जो सोर्स क्या हो सकता है, इधर इट इज ड्राई सेल और बैटरी, है ना. एक तो सेल हो सकता है, ड्राई सेल हो सकता है, या बैटरी हो सकता है. सो एंड इट शुड बी इन अ क्लोज्ड पाथ और सर्किट. सो it is there is possibility of electricity. Now we will discuss about materials that allow electricity to flow through them easily are called conductors. So we are talking about, now we will discuss about conductors. ये conductors क्या है? What is this conductors? What is this conductors? So these conductors are the material that allow electricity to flow through them easily are called conductors. So example of conductors, almost all metals are conductors. Graphite is the only non-metal. You should you should understand this fact कि graphite क्या है, non-metal है. Almost all metals are conductor and non-metals are, they are bad conductor, but among that non-metals graphite is only non-metal which is a good conductor of electricity. नाउ ये हो गया कंडक्टर के बारे में, हमने वी हैव डिस्कस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेटर. इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू कंडक्टर. ये इंसुलेटर क्या है? मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू टू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स हम उसे बोलते हैं जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है उसकी बॉडी में से, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स. दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस इंसुलेटर्स आर, हम एग्जाम्पल्स अगर लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ सपोज इरेजर है, रबर है, देन प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है. दिस ऑल आर द इंसुलेटर्स. ये सभी क्या है, इंसुलेटर्स है. इंसुलेटर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कभी ऐसा हो गया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, वी वांट टू यूज इट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है, बट फॉर कुछ हमें उसमें से वो हम हैंडल नहीं कर सकते बिकॉज अवर बॉडी इज ऑल्सो, ये क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमें शॉक लग जाएगा और फिर वो कोई हमें यूज नहीं आएगा. सो फॉर दैट ये जो इंसुलेटर्स है वो किस में यूज कर सकते हैं, हम किसी डेंजरस इफेक्ट्स के इलेक्ट्रिसिटी के आगे हम यूज कर सकते हैं. For example, the plastic coating that is plastic coating that you see on tools used by electricians. Electricians जो use करते हैं tools, तो वो कैसे use करते हैं आपको पता है
कैसे, हाउ दे आर हैंडल, तो वो क्या करते हैं, ये इंसुलेटर से कोटिंग किया हुआ टूल्स दे आर यूजिंग. सो इंसुलेटर्स आर ऑल्सो यूजफुल, है ना. ओनली कंडक्टर्स आर नॉट यूजफुल, इंसुलेटर्स आर यूजफुल टू अस when we are using this electricity and we are handling this electricity. If something short circuit is there, or some suppose any tool is not working properly, that time if we want to repair it, that time these insulators are helpful. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक टेस्टर. हम टेस्टर की बात करेंगे. टेस्टर मीन्स क्या, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है. बिकॉज टेस्टर मीन्स टेस्ट करना. ठीक है स्टूडेंट्स. सो एन इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक सेल प्रेजेंट होता है, देन इलेक्ट्रिक सेल इज प्रेजेंट. Electric tester is used for whether a particular material is a conductor or an insulator. सबसे पहले क्या है, जो मैंने बोला कि हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर द गिवन मटेरियल इज कंडक्टर और इंसुलेटर. फ्लो हो रहा है नहीं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो उसमें हो रहा है नहीं हो रहा है. And you might have seen your father or your mother also, they are using this. We are used to it, this electric tester. बहुत सारी चीज़ों में, सपोज हम ये मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, ग्राइंडर वी आर यूजिंग, टेलीविजन का कहीं पे कुछ हो रहा है, शॉर्ट सर्किट नहीं, बट इफ़ एनी टूल इज़ नॉट वर्किंग, तो सबसे पहले क्या होता है कि फादर इज जस्ट टेकिंग दैट इलेक्ट्रिक टेस्टर एंड ही वांट टू चेक वेदर द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग और नॉट प्रॉपरली. तो अपने ये जो बोलते हैं फर्स्ट स्टेप पे है ना, प्राइमरी बेसिस पे दे आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक टेस्टर. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक टेस्टर, क्या होता है इलेक्ट्रिक टेस्टर. इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, CELL, यहाँ पे SEL है. सो इलेक्ट्रिक टेस्टर में इलेक्ट्रिक सेल होता है, टॉर्च बल्ब फिटेड ऑन अ होल्डर एंड सम कनेक्टिंग कॉपर वायर्स, है ना. इलेक्ट्रिक टेस्टर का जो यू हैव सीन, आपने ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैव सीन. तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे द प्लेस वेयर वी आर होल्डिंग, है ना, इंसुलेटर जैसा जो होता है, तो वहाँ पे एक टॉर्च बल्ब होता है. एंड इफ दैट टॉर्च बल्ब इज क्लोज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पाथ, ऐसा उसका मीनिंग होता है. सो दिस इज द डायग्राम आई हैव डिस्प्लेड ओवर हियर टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे देखो, बल्ब, सॉरी, दिस वन, ये जो है बल्ब लाइट्स अप. बल्ब लाइट्स अप मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू द सेल. ये टेस्टर का एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डायग्राम दिया हुआ है. ये कनेक्टिंग वायर्स है ना, दिस आर कनेक्टिंग वायर्स. ये टॉर्च, ये बल्ब है, यहाँ से हमें पता चलेगा वेदर द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग और नॉट. एंड दिस इज क्लोज सर्किट है, ये सेल यूज किया गया है ना. सो when electricity is not passing then this bulb will not glow. ये ग्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है. ये ग्लो हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. सो दिस इज द डायग्राम. द मटेरियल टू बी टेस्टेड इज कनेक्टेड इन द गैप, है ना. जो मटेरियल टेस्ट करना है वो कहाँ पे होता है, ये गैप में. ये जो गैप है यहाँ पे ये रहेगा. देन left between the ends A and B of the connecting wires. When the bulb light ups at once, the given material is a conductor. जब ये बल्ब यहाँ पे दिया है, I have shown you, if bulb is glow means this given material is conductor. Clear? And when this bulb ये यहाँ पे glow नहीं हुआ है means the given material, this given material is insulator. Okay, understood students. Now we will move towards the, ये तो क्या था, ये इलेक्ट्रिक टेस्टर से हमने फाइंड आउट किया वेदर द गिवन मटेरियल इज कंडक्टर और इंसुलेटर. So when the bulb lights up at once, the given material is a conductor. When the bulb does not light up at all, the given material here is insulator. Checking an electric tester. Now next topic is checking an electric tester. Suppose electric tester we are using, of course we are using, but it is possible वो electric tester ही
चल रहा है या नहीं, इफ इट इज वर्किंग और नॉट, वो हमें कैसे पता चलेगा? इफ समथिंग इज रॉन्ग विथ इट, तो हमें वो कैसे फाइंड आउट करना है, क्या रीजन हो सकते हैं? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस. We need to check the electric tester before we conduct any activity. Suppose that electric tester we are using, हम we want to do any experiment, हमें कोई experiment करना है, पेरेंट्स को घर पे कुछ करना है, they want to check. तो सबसे पहले you should know whether the electric tester is running or not, है ना, it is working or not. तो क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट. दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब ग्लोज. जैसे वो डायग्राम में दिखाया गया था, इन दैट वे. इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग. वो जो इलेक्ट्रिक टेस्टर था वो हम लोग जो यूज करने वाले हैं हमारी लैब में, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट. तो क्यों नहीं हो रहा है? वट वाई? सपोज द पॉसिबल रीजन्स आर, सपोज द बल्ब इज नॉट ग्लो अप, तो हम उसके क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट रीजन इट वुड बी कनेक्शन आर लूज. कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, सर्किट में वट एवर कनेक्शन हमने, जैसे कॉपर वायर्स यूज किया गया है, बल्ब यूज किया है, सेल यूज किया है, सो इन दैट सर्किट इट इज पॉसिबल कि इनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है. एंड द सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? द बल्ब इज फ्यूज्ड. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ओनली इट इज द प्रॉब्लम ऑफ सर्किट. इट इज पॉसिबल कि वॉट एवर द बल्ब यू आर यूजिंग इट इज फ्यूज्ड, वो that is not in a proper condition. This is also, it would be second reason. The cell is used up. This is the cell is used up. जो सेल यहाँ पे हमने यूज किया है, तो वो सेल क्या हुआ है? it is used up, वो खत्म हो गया है. ये 3 reasons might be there. That's why this electric tester is not working. Now we will discuss about modifications in electric tester. Whatever modifications किए गए हैं, when the electric current passes through an electric tester, due to the heating effect of the current, bulb glow. The filament of the bulb gets heated to a high temperature and it start glowing. So what is the mechanism? कैसे चलता है ये इलेक्ट्रिक टेस्टर, कैसे चलता है? तो इलेक्ट्रिक टेस्टर में से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है थ्रू एन इलेक्ट्रिक टेस्टर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट. ये हीटिंग इफेक्ट है. कैसे हीटिंग इफेक्ट है? जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो दे आर गिविंग देयर एनर्जी. वो उनके पास लॉट्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी दे आर गिविंग, एंड उसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एंड दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बल्ब ग्लोज. अंडरस्टूड? नाउ the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. In the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. But when it is, sometime it is possible कि in a circuit जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, वॉट एवर इलेक्ट्रिक करंट वी आर फ्लोइंग, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसका एनर्जी ज़्यादा नहीं है. इफ़ इट्स एनर्जी इज़ नॉट वेरी हाई, तो व्हाट हैपन? वॉट एवर द इलेक्ट्रिक बल्ब वी आर यूजिंग, हम जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब यूज कर रहे हैं, तो उसको सफिशियंट एनर्जी नहीं मिलेगी, ये ग्लो नहीं करेगा. अंडरस्टूड? देन व्हाट यू नीड टू डू? सो वी कैन यूज सेंसिटिव डिटेक्टर. तो हम क्या यूज करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? वी विल यूज सेंसिटिव डिटेक्टर सच एज एलईडी यूज कर सकते हैं, और अ मैग्नेटिक कंपास. और हम क्या यूज कर सकते हैं? मैग्नेटिक कंपास भी यूज कर सकते हैं. हम यूज कर सकते हैं एलईडी. वी कैन यूज मैग्नेटिक कंपास इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर. क्यों हमने यूज किया? बिकॉज इलेक्ट्रिक बल्ब नीड्स high energy comparatively LED and magnetic compass. These two tools required less energy and with less that electricity it can glow. LED means light emitting diode. LED क्या होता है? Light emitting diode. It is similar to a bulb but it runs on very low voltage. If अगर हम now we are using, हम एलईडी अगर यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड अगर हम यूज करते हैं, तो इट वर्क्स ऑन अ वेरी लो वोल्टेज, कम वोल्टेज पे भी ये चलेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें
कम आएगा. द कलर लाइट्स दैट यू सी इन रिटेल स्टोर्स, है ना, रिटेल स्टोर्स में देखोगे, स्टेजेस में, ब्रिजेस पे, कीपैड ऑफ मोबाइल फोन्स, तो वो सब क्या है, दैट ऑल आर एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड. तो उसमें क्या होता है, इट नीड्स लो वोल्टेज, इसमें लो इलेक्ट्रिसिटी, लो वोल्टेज पे ये चलता है एंड वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी. सो ये इसका मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है इसका, हाउ इट वर्क्स. सो इसमें क्या होता है, टू वायर्स ऑफ लीड्स, है ना, टू वायर्स दैट इज मेड अप ऑफ लीड्स आर अटैच्ड टू एलईडी. टू वायर्स जो एलईडी लीड से बनी हुई है, वो लाइट इमिटिंग डायोड को इट इज अटैच्ड. वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर, एक थोड़ा बड़ा है एंड एक थोड़ा छोटा है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा. तो ये दिस साइड इट इज, ये क्या है, लॉन्गर. सो लॉन्गर लीड इट वो क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, एंड दिस वन इज द शॉर्टर लीड, इट एक्ट्स एज अ negative. Now, so is slightly longer than other, it is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected negative terminal. Understood? And it is already given on your screen. So longer than while connecting to circuit. So ये जो किया था हमने, तो एलईडी पे, एलईडी का जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लीड का वायर यूज करते हैं. छोटा जो बड़ा वाला जो वायर है, इट इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो and the shorter lead is negative terminal of the battery, and in this way it's working. Now the next topic is magnetic compass. अब हमने क्या देखा, एलईडी हमने देखा, एलईडी कैसे वर्क करता है, विद द हेल्प ऑफ, है ना, लीड वायर से यूज किया जाता है, लीड वायर उसमें यूज किया जाता है एंड विद लो वोल्टेज ये वर्क करता है. द सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल था इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्लेस करने का, दैट इज मैग्नेटिक कंपास. ये मैग्नेटिक कंपास क्या है, इट इज अ डिवाइस which can detect very weak current flowing through the wire. So ये डिवाइस भी है, ये सेंसिटिव है ना, जस्ट लाइक एलईडी इट इज ऑल्सो सेंसिटिव, एंड ये भी वीक वोल्टेज पे क्या करता है, वीक वोल्टेज ऑल्सो इट कैन डिटेक्ट. इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज द, इसका क्या है, वो लाइट इमिटिंग डायोड था, जैसे लाइट इमिट करती है, एनर्जी मिलता है तो लाइट इमिट करती है. सो एलईडी वाज वर्किंग ऑन दैट बेसिस, एंड ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है, उसके नीचे अगर हम मैग्नेट रखेंगे, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट हैज इट्स ओन ओरा, है ना, उसको भी खुद का फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फील्ड होता है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं. द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. समझ में आ रहा है बच्चों आपको कि इसमें क्या हो रहा है, कि इलेक्ट्रिक करंट का जो खुद का फील्ड है, वो फील्ड में मैग्नेटिक कंपास अगर हम रखते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो मूव करेगा, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट वी विल कम टू नो वेदर द करंट इज पास थ्रू द वायर और नॉट. ठीक है. नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. तो वो क्या है, एलईडी आर इंक्रीजिंगली बिंग यूज्ड फॉर लाइटनिंग. अ लार्ज नंबर ऑफ एलईडी आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ एलईडी लाइट सोर्स. एलईडी सेव इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई ये एलईडी बहुत जगह पे यूज किया जाता है, एंड उसका जो टुगेदर एलईडी जो है उसे हम एलईडी लाइट सोर्स बोलते हैं. एलईडी लाइट सोर्सेस आर प्रिफर्ड टू लाइट बल्ब्स and fluorescent bulbs because they consume less energy and function for longer time. So LED का क्या एडवांटेज है, it saves electricity and its time period वो ज़्यादा देता है. but what is disadvantage, LED तो LED के एडवांटेज के बारे में we have learned, but what is the that disadvantage of this LED, तो ये क्या है, it is expensive, it is costly. So now multiple choice questions I have displayed over here. You are supposed to just go through it, answer it in comment box and just tell me
what are the answers. The next topic is electrical conductivity. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्या है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. कोई भी सब्सटेंस है वो उसकी बॉडी में से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, वो एबिलिटी, वो कैलिबर, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Substances that are good conductors of electricity have high electrical conductivity. Very easy, समझ में आ रहा है. हमने क्या बात की थी, हमने क्या डिस्कस किया था? What we have discussed कि almost all metals are good conductor of electricity. तो good conductors of electricity means क्या होता है? Conductors of all metals are गुड कंडक्टर जैसे हमने बोला है, तो मीन्स क्या? उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? हाई है. उनका पावर ज्यादा है उनकी बॉडी में से इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने का. आई होप यू अंडरस्टूड. इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Of course, insulators poor conductor of electricity रहेंगे because insulators are the substances which are not given permission to electric current pass through them. उनकी बॉडी में से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की परमिशन ही नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके. Many liquids can conduct electricity. Now we will move towards next topic, students, because हमने अब तक क्या देखा? We have discussed about conductor and insulator के बारे में भी we have discussed कि metal and non-metal को we have correlated. Now अब हम बात करेंगे, वो तो solids थे almost. अभी हम बात करेंगे कि liquids में से electricity flow हो सकती है क्या? तो यहाँ पे क्या statement है? Many liquids can conduct electricity. Okay. So terms commonly used in describing chemical effects of current. Now हम डिस्कस करेंगे ये जो है, जो बीच में जो एक्टिविटी है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स एज गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द, हम सबसे पहले मैं बात क्या करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स आपके साथ, ये जो लिक्विड है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, तो उसमें क्या है, कुछ टर्म्स, न्यू टर्म्स यू हैव. आयंस है, देन इलेक्ट्रिक आयंस होते हैं. व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स आयंस. दिस इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के बेस्ड है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयंस की. आयंस होता है, ये आयन कब पॉसिबल है? व्हेन कोई भी सब्सटेंस है ना. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ सोडियम मेटल. मैं सोडियम मेटल का एग्जाम्पल देती हूँ. उसका एटॉमिक नंबर है 11. उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है. व्हेन दिस सोडियम एटम इज लूज 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेगा तो उसका आयन बन जाएगा Na+. क्या आयन बनेगा? सोडियम का, सोडियम मेटल का आयन बन जाएगा Na+. ये कब पॉसिबल हुआ? व्हेन दिस सोडियम मेटल हैज लूज 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देन वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. ये प्लस जो था, Na+ था, उसे हम कैटायन बोलते हैं. पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायन बोलते हैं. निगेटिवली चार्ज जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने क्या किया? एक्वायर किया, गेन किया, तो क्लोरीन क्या बन जाएगा? Cl-. क्या बन जाएगा? Cl-. तो ये जो Cl- है, इस Cl- को हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे एनायंस. हम इसे क्या बोलेंगे? एनायंस. निगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायंस. आयंस जो है, आयंस की जो हम बात करते हैं, ये आयंस, ये Na+ भी है एंड Cl- भी है. ये दोनों क्या है? आयंस. व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स आयंस. तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. ये कब पॉसिबल है? ये प्लस वाले माइनस वाले आयंस बन गए. इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हेन वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एनी मीडियम, है ना, किसी मीडियम में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, that time ये gaining and losing of electrons, this mechanism is happen and there is formation of cations and anions. ये क्या है? these are cations. इसे हम cations बोलते हैं. and ये cations क्या है? cations are positively charged ions are called cations. anions क्या है? negatively charged ions are called anions.
So as I said, now we are going to discuss about students. Next topic is electrolytes. ये जो whatever I am discussing over here, it is related to when we are just passing electricity through liquids, है ना. liquids में से हम electricity pass कर रहे हैं, तो there is वहाँ पे क्या formation हो रहा है, there is formation of ions, है ना. फॉर्मेशन ऑफ आयंस, वो आयंस क्या है, टू टाइप्स, दैट इज कैटायन एंड एनायंस. दिस वन वी हैव डिस्कस. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स chemical compounds whose molecules ionize into positively and negatively charged ions in a solution are called electrolyte. क्या है, सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि ये NaCl है. NaCl क्या है, टेबल सॉल्ट. ओके, सो NaCl को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज केमिकल नेम क्या है उसका, सोडियम क्लोराइड. उसका नेम है सोडियम क्लोराइड. इट डिजोल्व्स इन वाटर, it produces sodium ions and chloride. जब हम when we are dissolving, हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, दिस NaCl को, then there is, फिर क्या होगा, ये NaCl वाटर में डिजोल्व हो जाएगा and there is formation of, वहाँ पे क्या होगा, formation of Na plus and Cl minus. सब पहले क्या था, ये NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, वाटर में डिजोल्व करने के बाद देयर इज, उनका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, देन देयर आर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन. दिस Na plus is cation, this Cl minus is anion. Understood? The solution of sodium chloride in water is called aqueous solution of common salt. New term you have, आपको एक न्यू टर्म मिली, दैट इज aqueous solution. ये aqueous solution क्या होता है, aqueous solution means the solution which contain, which dissolve, वो solution which contain water is called as aqueous solution. Okay, now an electrolyte forms ions, जो मैंने आप लोगों को दिया बताया, ये Cl minus जो है, ये Cl minus are anions and Na plus are cations. Okay.